Hello everyone, welcome to iQuanta. I'm Yogesh and here I bring you to the 15th session or probably the last session in this numbers playlist. I hope you enjoyed the entire playlist. You know numbers better than before. And if you really like the playlist, the quality of questions, the quality of content, and you feel that there has been some change in your understanding of numbers, do like this video, share this with your friends, and do let me know your feedback in comments. And also if you want something else from my side, it could be any topic like algebra, geometry or something else, I'll definitely try to come up with it. So let's begin our session. This is based upon HCF LCM again, but we'll be doing some practice oriented questions, and along with practice we'll be learning different types of cases and formulas. Okay, and I'm also going to cover some questions of successive division in this. Okay, so let's go ahead and let's finish numbers, even though there are few more things, few more varieties of questions left in numbers, but I do not count them under concepts. Okay, there's one concept called base system, but it has not been seen in previous IP maths. I'll try to come up with a small, basic session on base system as well, even though it's kind of irrelevant for IP math, but still I'll do it. So far whatever we have done covers numbers entirely, and if from this point you want to make your understanding of numbers stronger, then there are some practice sessions right below this session. Okay, I think there are somewhere around 7 to 8 sessions in which we have solved 10 very good quality questions of numbers. They are basically there to increase your variety. Okay, as I keep saying, the more variety you bring in your practice, the probability of getting similar type of questions in the exam increases. Okay, so the first question in front of us is the greatest among 2 की power 1 by 2, 3 की power 1 by 3, 4 की power 1 by 4 is. Now some of you might be habitual of solving such kind of questions through maybe by value calculation, approximating the value, or by using logarithms, but we are not going into that. We are going to use the HCF LCM method to solve such questions. Okay, so 2 to the power 1 by 2, 3 to the power 1 by 3 and 4 to the power 1 by 4, which one is the greatest? Okay, see, in such questions when numbers, the bases are very close to each other, 2, 3, 4, fractions also 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 are very close to each other, you can do one thing. Okay, first of all, whenever we have such kind of questions, we do not need to get into calculation of 2 की power 1 by 2, 3 की power 1 by 3, 4 की power 1 by 4. That is kind of impossible. I mean, you can easily calculate 2 to the power 1 by 2, but not 3 to the power 1 by 3, 4 to the power 1 by 4. Okay, so what we'll try to do is we'll try to remove the fractions. Okay, in the power. So what should I do? In one of the quantities that I have 2 to the power 1 by 2, second I have 3 to the power 1 by 3, and third I have 4 to the power 1 by 4. If I'm somehow able to remove the fractions, how can I do it? I have 2 in the denominator of first fraction, 3 in the denominator of second, 4 in the denominator of third. If I raise all of them to such powers, okay, if I raise 2 to the power 1 by 2, 3 to the power 1 by 3 and then 4 to the power 1 by 4 to such powers that I am able to cancel all the fractions, then it would become a lot easier for me, right? So this is 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. I am basically looking for LCM of 2, 3 and 4 because I am going to raise each quantity to that power so that I remove the fractions from the power. Okay, so LCM of 2, 3, 4 is 12. So if I raise all of these to 12, power 12, things still remain the same. They'll still remain in that particular order, isn't it? I mean, if 2, 3, 4 are in increasing order, the funda behind this is if 2, 3, 4 are 3 numbers in increasing order, you can also say that 2 square, 3 square, 4 square will still be in increasing order, right? So that is what I am doing here. 2 to the power 1 by 2 to the power 12. 2 cancels 12, we get 6. 3 cancels 12, we get 4. 4 cancels 12, we get 3. So ultimately I get 2 to the power 6, 3 to the power 4 and then 4 to the power 3. We want to check the greatest among these. Which is the greatest? 2 to the power 6 is 64. 3 to the power 4 is 81. 4 to the power 3 is 64. So which one is the greatest? 81. I mean 3 to the power 4. And where did 3 to the power 4 came from? It came from 3 की power 1 by 3. So straight away 3 की power 1 by 3 is the greatest. Okay. I hope this is clear. Okay. I'll tell you one more shortcut around this. I mean, what do you see here? If the base is x, the power is in form of 1 by x. So all of these are values of the form x की power 1 by x. X की power 1 by x achieves its maximum value. It achieves its maximum value when x is equal to e. Now you'll ask me what is e? E is exponential constant. Okay, e has value
2.71. I am teaching a shortcut, okay? E is 2.71. So whenever you get such numbers which are in form of x to the power 1 by x, that particular value in which x is as close as possible to E will be the greatest. So among 2, 3 and 4, 2, 3, 4 are the values of x, right? Which one is the closest to 2.71? The difference between 2 and 2.71 is 0.71. Difference between 3 and 0.71, 2.71 is 0.29. The difference between 4 and 2.71 is 1.29, isn't it? So which one is the closest? 3 is closest to 2.71 and hence 3 की power 1 by 3 will be the greatest. Okay? I hope this is clear. Question could have been 2 की power 1 by 2, 2.5 की power 1 upon 2.5 and then maybe 3 की power 1 by 3. Which one is the greatest? So again you have to check which particular base is very close to 2.71. Close means difference, right? So you just check the difference between 2 and 2.71, 3 and 2.71, 4 and 2.71. In whichever you get the least difference, that will be the greatest quantity. I hope this shortcut is clear to you, okay? This is for other variations that they can give you from this question, okay? I have brought difficult questions in this class, okay? Not very easy. When 907 is divided by two two-digit numbers n and n plus 2, the remainder obtained in both the cases is x. Then the value of x for the maximum possible value of n is. Now this is a thought-provoking question, okay? 907 is divided by two two-digit numbers n and n plus 2. You do not know the numbers, you just know this is the number being divided, 907. The remainder obtained in both the cases is x. Okay. So you all know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. My dividend is 907, right? This is equal to divisor. First let me divide it by n. Let's suppose there will be some quotient, I don't know it obviously because I do not know the value of my divisor, right? So if I divide this 907 by n, let us suppose that the quotient is a plus remainder is x, and this 907 can also be written as divisor this, that means n plus 2 into quotient will change now because divisor has changed, quotient will change plus remainder. I hope ये सबको clear है. सबसे important part इस particular question का यही है, ठीक है? But हमें दो चीजें और दे रखी हैं, that is these are two two-digit numbers and they have a difference of 2, isn't it? n and n plus 2. Okay? The value of x for the maximum possible value of n is. अब ये देखो, अगर आपको ये चीज दिख रही है तो I hope you are able to make something out of this. If you remember Chinese remainder theorem CRT that we did in remainder, अगर नहीं आता है तो प्लीज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की क्लास देखो, उससे रिलेटेड है बहुत ज्यादा है, ठीक है? हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 907 है, इट कैन बी रिटन एज na प्लस एक्स इन n प्लस 2 इंटू बी प्लस एक्स, राइट? हम क्या करते थे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, a और b की कुछ ऐसी वैल्यूज लाते थे कि ये दोनों बराबर हो जाएं. अब आप ऐसा a और b की क्या वैल्यू रखोगे कि दोनों बराबर हो जाएं? सो वेरी क्लियरली अगर a की जगह मैं n प्लस 2 रख दूं और b की जगह in place of b if I put n, what am I going to get? See, n into n plus 2 plus x, and here I am going to get n plus 2 into n plus x. n into n plus 2 plus x, n into n plus 2 plus x आ गया बराबर. यही तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, है ना? हम दोनों को बराबर करते थे. यस और नो? अगर नहीं आता, अगेन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखना पड़ेगा, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू सी कि हमारा जो नंबर है 907, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? n इंटू एन प्लस 2 प्लस एक्स. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? द वैल्यू ऑफ x फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. हमको n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू करनी है. अब आप खुद सोचो कि n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम कब कर सकते हैं? हमें पता है कि n07 इज इक्वल टू दिस, है ना? सो n इंटू एन प्लस 2, ठीक है, कैन बी रिटन एज 907 माइनस एक्स. यस, वेरी गुड, कर सकते हैं ऐसा. अब हमें n की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना है, बस n हमें एक 2 डिजिट नंबर लेना है, और बल्कि n को हम जैसे ही 2 डिजिट नंबर लेंगे उसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उससे 2 ज़्यादा है. ओके, तो हमें बस n का अप्रॉक्सीमेशन करना है. आपकी भाई n की हम ऐसी कौन सी 2 डिजिट नंबर की वैल्यू लें कि वो 907 से थोड़ी सी कम आए, बिकॉज हियर ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 907 माइनस एक्स. वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. ओके, करते हैं, 907 के आसपास जाते हैं.
अगर मैं n को सपोज 25 रखता हूं तो क्या मिलेगा 25 इंटू 27। अगर आप 25 इंटू 27 की वैल्यू निकालोगे दिस वुड बी समवेयर अराउंड 25 इंटू 20 इज 500, 25 इंटू 7 इज 175, सो 675 आएगा। अभी हम नहीं पहुंचे, मतलब ये दो नंबर्स मैंने ले लिए जहां पे n की वैल्यू 25 होगी तो n+2 की 27 होगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी 675 के क्लोज है, हमें 907 के क्लोज जाना है। तो हम एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, ओके 27 इंटू 29 करते हैं, ओके 27 इंटू 29 करने से क्या होगा देखो, 27 इंटू 20 540, 540 और ये कितना आ जाएगा आपका, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द प्रोडक्ट राइट। 27 इंटू 20 इज 540 एंड 27 इंटू 9 दैट इज 243, दिस इज गिविंग यू 783, isn't it? I hope this is clear. अभी भी हम 907 के क्लोज नहीं पहुंचे, तो अभी हमने n देखो शुरू 25 से किया था बिकॉज ऑब्वियसली हमें 907 के क्लोज जाना है। 27 पे गया हमें, मुझे नहीं मिला। एक बार मैं n को 29 करके देखता हूँ। अगर n 29 होगा तो n+2 कितना होगा 31। अगर आप 29 इंटू 31 करोगे तो क्या आएगा 290, सबसे पहले तो ओके 870 प्लस 29 यानी कि 899 आ गया है। यानी कि देखो n को 29 रखते ही n+2 31 हो जाएगा और ये आ जाएगा 907 माइनस x। अब हमें दिख रहा है कि हाँ हम 907 के बहुत क्लोज पहुंच गए बिकॉज हम 899 पे आ गए। अगर आप यहां से अब n की वैल्यू और बढ़ाओगे, n को 30 करोगे तो आएगा 30 इंटू 32 विच बिकम्स 960, यानी कि 30 इंटू 32 करोगे तो वो आगे चला जाएगा 960 से, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 960। बट क्या ये कभी 960 बन सकता है? और x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, isn't it? है ना, रिमाइंडर पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमको n इक्वल टू 29 पे रुकना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट जनरेट कर पाएं दो 2 डिजिट नंबर्स का जो 907 के क्लोज हो, दैट इज 29 टू 31। तो वेरी क्लियरली n की वैल्यू 29 आ गई है मेरे पास। n की वैल्यू 29 आते ही हमें क्या दिख गया कि 29 इंटू 31 907 माइनस एक्स। इससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे। देखो n को मैक्सिमाइज कर चुके हैं हम, ठीक है, n को इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 899, 907 वहाँ जाएगा 8, x की वैल्यू आएगी 8। ओके दैट इज माय आंसर 8। आई होप ये क्लियर है। इसमें एक्सटेंसिव यूज है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, बहुत आसान है वैसे तो ये क्वेश्चन। आई होप यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, बट ये पूरी प्रोसेस आपको तब क्लियर होगी जब आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के 5-6 क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट के वीडियो से देखे हुए हैं जो मैंने आगे कराई हुई है, ठीक है। तो गो टू द प्लेलिस्ट। आई थिंक 5th-6th सेशन में मैंने कुछ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कराया होगा, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हमेशा आते हैं। ये है परफेक्ट सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड आर 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है और ये इसी फॉर्मेट में आता है, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो जहाँ पर क्वेश्चन में सक्सेसिवली डिवाइडेड आ गया, इसका मतलब आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, सीधा सीधा नहीं जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस वी कैन सी दैट अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, 4, 7 सक्सेसिवली, रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड आर 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर n था, उसको किसने डिवाइड किया? 3 ने। तो डेफिनेटली कुछ क्वोशंट आया होगा Q1, ऑब्वियसली क्वोशंट आया होगा, राइट। बट उसका रिमाइंडर कितना जनरेट हुआ? 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जनरेट हुआ 2। तो कैन आई से दैट माई नंबर n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्वोशंट 1 प्लस 2। अब सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर लेते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब आप सक्सेसिव जो क्वोशंट्स आ रहे हैं उनको डिवाइड करते जा रहे हो, ठीक है। पहले 3 ने सबसे पहले क्या किया, अपने नंबर n को डिवाइड किया और रिमाइंडर 2 निकाल लिया, तो 3 का केस गया। अब बचा 4। 4 से सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब है कि अब जो ये क्वोशंट आया है यहाँ पे नया, ये किससे डिवाइड होगा? ये 4 से डिवाइड होगा। तो इफ यू डिवाइड योर क्वोशंट Q1 बाई 4, ठीक है, तो कोई एक नया क्वोशंट जनरेट होगा Q2, और इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 4 से डिवाइड करने पे 3। तो कैन आई से दैट माई डिविडेंड हियर नाउ इज, पहले मेरा डिविडेंड n था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे ये है मेरा डिविडेंड Q1, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एंड सिमिलरली अब मेरा लास्ट स्टेप बचा है कि 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, बट मैं भी आपको बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो कौन डिवाइड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Q2, दैट विल बी डिवाइडेड विद 7। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आएगा Q3 और मेरा रिमाइंडर फाइनली यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, राइट।
उससे मेरा रिमाइंडर आएगा आपका 5, है ना। सो नाउ माई डिविडेंड हैज़ बिकम Q2. Q2 विल बी डिवाइजर 7 इंटू कोशेंट Q3 प्लस रिमाइंडर 5. अब हमें कुछ नहीं करना. आई होप आपको सक्सेसिव डिवीजन का मतलब समझ में आ गया कि जो सक्सेसिव क्वोशंट्स होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं. ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये समझ लिया, आप कभी भी जो शॉर्टकट है उसको भूलोगे नहीं, बिकॉज शॉर्टकट निकलता ही पूरा यहाँ से. ठीक है. सो नाउ व्हाट शुड वी डू. हमें बस ये देखना है कि एक्चुअली मेरा जो n है वो किस फॉर्म में आएगा. ठीक है. अब सबसे पहले आप देखो क्या करोगे. क्या आप Q1 को डायरेक्टली n में पुश कर सकते हो? यस. सो लेट्स फाइंड आउट. n इज 3 टाइम्स Q1. व्हाट इज Q1? 4Q2 plus 3 and plus 2. Yes or no? So 12Q2 plus 3 3 9, 9 plus 2 11. n मेरा आ गया है Q2 के टर्म्स में, बट मेरे पास Q3 भी तो यूज करना है मुझे, डिवीजन बाई 7. सो अब मैं Q2 जो आया है Q2 इसको Q3 के टर्म्स में डालूंगा. सो व्हाट विल आई गेट? 12 टाइम्स Q2 को Q3 के टर्म्स में डालोगे तो क्या आएगा? 7Q3 प्लस 5. तो व्हाट डू यू गेट? 84Q3 प्लस, अच्छा ये 11 भी है. ठीक है, यहाँ पर बिकॉज 11 भी है ना. तो 84Q3, 12 5 60, 60 प्लस 11 71. दिस इज माई फाइनल n जो मुझे मिल रहा है आफ्टर सक्सेसिव डिविजन्स. तो n मेरा एक ऐसा नंबर है विच इज ऑफ द फॉर्म 84Q3 प्लस 71. Q3 क्या है इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर. सेम नंबर मतलब n की बात चल रही है, तो n को हम लिख सकते हैं 84 टाइम्स Q3 प्लस 71. सो अगर अब मेरे पास, मुझे पता लग गया कि मेरा नंबर जो है वो डेफिनेटली 84Q3 प्लस 71 फॉर्मेट का है, तो ये जब भी 84 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऑब्वियसली आप Q3 की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वट एवर, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 84 बिकॉज वो 84 का मल्टीपल है. बचेगा आपके पास अल्टीमेटली 71 डिवाइडेड बाई 84, और 74 को 81 से डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर आता है 71. 71 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एक तरीका तो ये हो गया. ये है लॉन्ग मेथड. लॉन्ग मेथड की मतलब मैंने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से ओपन कर दिया. ठीक है, पार्ट बाय पार्ट. बट व्हाट इज द फास्टर वे? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखो कि लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर और लास्ट रिमाइंडर से शुरू करना है. स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. सो कोई चीज़ ऐसी है जिस 7 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको 7x प्लस 5 लिख सकते हैं. ये चीज़ कब आई होगी? इससे पहले वाले डिवाइजर पे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया? 3. तो रिवर्स आपको लिखना है. 4 से डिवाइड किया हमने इस चीज़ को तो रिमाइंडर आया 3. एंड फाइनली इस चीज़ को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2. दिस इज द शॉर्टकट वे जिसमें आप एक ही बार में इसकी इक्वेशन लिख करके, क्योंकि आपको बोल रहा है कि 84 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, अब इसका निकाल लो जनरल फॉर्मेट. ब्रैकेट्स आपको पता है, सबसे पहले हम इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 4 7 जा 28, 28 प्लस 20 प्लस 23. सो 28x प्लस 20 प्लस 3 23. एंड फाइनली यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स और यहाँ पर आएगा 2. दिस फाइनली सॉल्व्स डाउन टू 84x प्लस 69 प्लस 2, 84x प्लस 71. दिस वॉज वे फास्टर इजंट इट? यानी कि जो नंबर मेरा होगा वो इस फॉर्मेट का होगा 84 टाइम्स 71, 84 टाइम्स x प्लस 71. इस नंबर को कभी भी आप 84 से डिवाइड करोगे 84x विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 84 एंड रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 71. दैट्स इट. इजी क्वेश्चन. दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं. पहला तरीका इसलिए कि आप कभी कुछ भूलो नहीं. सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है सक्सेसिव जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिवाइड होते जाएंगे जब तक आपका फिनिश नहीं होता. ठीक है. एंड शॉर्टकट इज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिवाइजर 7x प्लस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर था, फिर 4 से डिवाइड करने पे 3, फिर 3 से डिवाइड करने पे 2. दिस इज द इक्वेशन यू विल फॉर्म एंड सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप ये भी सबको क्लियर है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4 ऑन डिवीजन बाई 5, 5 ऑन डिवीजन बाई 6, 6 ऑन डिवीजन बाई 7, 7 ऑन डिवीजन बाई 8, 8 ऑन डिवीजन बाई 9. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं. एक नंबर है दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4 ऑन डिविजिबल बाई 5, है ना. एक नंबर है जब आप इसे 4 ऑन डिवीजन बाई 5, सो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4. उसी नंबर को जब आप 5 ऑन डिवीजन बाई 6, 6 से डिवाइड करोगे तो अब क्वेश्चन बदल जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है 5. 6 ऑन डिवीजन बाई 7, इसी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन बदल जाएगा, रिमाइंडर आएगा 6.
7 ऑन डिवीजन बाई 8, सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 8, तो मैं ले लेता हूँ 8a, क्वेश्चन बदलते रहना है बस मुझे, है ना अपना। 7 ऑन डिवीजन बाई 8 आ गया है ना, 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर, सो 8 टाइम्स द क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एंड फाइनली और हमसे बोला हुआ है कि 8 ऑन डिवीजन बाई 9, कि अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9b लिख दिया प्लस रिमाइंडर 8। इन सारी इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन होगी, इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऐसे का ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता है जनरली, ओके। इसमें एक बहुत स्पेशलिटी होती है, जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से क्या है, एक कम है, इजंट इट। इन ऑल द केसेस दैट यू सी, माई डिवाइजर इज 5, रिमाइंडर इज 4, डिवाइजर इज 6, रिमाइंडर इज 5, डिवाइजर इज 7, रिमाइंडर इज 6, डिवाइजर इज 8, रिमाइंडर इज 7, डिवाइजर इज 9, रिमाइंडर इज 8। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो एक कम है डिवाइजर से, है ना। डिवाइजर 5, रिमाइंडर 4, डिवाइजर 6, रिमाइंडर 5, हर केस में रिमाइंडर एक कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली इसका द फॉर्म ऑफ द नंबर, देखो इन क्वेश्चंस में ना फॉर्म ऑफ द नंबर निकालने में जल्दी फायदा होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। इट विल बी इक्वल टू से सम वेरिएबल k times what, the LCM of all the divisors. What are my divisors? 5, 6, 7, 8, 9, okay, 5, 6, 7, 8, 9, एंड जितना आपका रिमाइंडर का डिफरेंस, आई मीन द डिफरेंस बिटवीन, नॉट रिमाइंडर का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर एंड व्हाट द रिमाइंडर, उसको लिख लो। कितने का डिफरेंस है, देखो 1 का डिफरेंस है तो -1 कर लो, ठीक है। व्हाट डू यू गेट हियर, 5, 6, 7, 8, 9 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, 9। इट विल बी 9 into 8, 72, 72 into 7, 72 into 7 will be 504, 504 into 5, that is 2520. So k times 2520 minus 1, तो मेरा नंबर जो है वो इस फॉर्मेट का है, 2520 k minus 1। हमें चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर। इस नंबर को छोटा करने के लिए आप क्या करोगे, यही तो मेरा n है ना, इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे, k की वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल डालोगे। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो k की वैल्यू 0 तो नहीं डालोगे, k की वैल्यू 0 डालोगे तो नंबर -1 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शंस में देखोगे तो सबसे, अगर आप कुछ छोटा बनाना है इस n को, तो k को छोटा रखो, k को 1 रखो, k को 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2520 minus 1, 2520 minus 1 is 2519 and that's my answer. Next, there are two numbers such that a is greater than b, HCF of a comma b is h and LCM of a comma b is equal to I. What is the LCM of a minus b and b? Okay, this is also a good question. दो numbers हैं such that a is greater than b. पहले हमको पता लग गया कि a greater than b है. HCF is h. LCM is, this is L, okay, probably L. What is the LCM of a minus b and b? आप सबको एक रूल पता है, that is HCF into LCM. तो दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन में, HCF into LCM equal to product of the given numbers, product of two numbers. and ये मैंने रूल बताया था कि सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट मोर देन दैट, कभी मत लगाना, ठीक है। अब HCF into LCM, देखो A और B दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। What is the LCM of these two numbers? अगर हम LCM इसकी बात कर रहे हैं a minus b, b की, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सी, हमें नहीं पता कि भाई a माइनस बी और b का क्या सीन है, मैंने बट आपको परसों एक रूल बताया था, हमें नहीं पता ना कि a माइनस बी और b की वैल्यू क्या होगी, बस इतना पता है कि a बड़ा है b से, वो इसलिए दिया है ताकि a माइनस बी कभी नेगेटिव ना आए यहाँ पर, है ना, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैंने आपको परसों एक रूल बताया था कि अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं दैट आर a एंड b, ठीक है, तो HCF ऑफ a, b will also be the HCF of a minus b, b। मैंने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे a माइनस बी दिख रहा है LCM निकालने के लिए, तो मैं HCF भी निकालूंगा इसका। तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि HCF ऑफ में अगर a माइनस बी, b की बात कर रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली, बिकॉज सी टू नंबर्स अंडर कंसिडरेशन दिस क्वेश्चन आर a माइनस बी एंड b, तो अगर मैं इनका HCF लूंगा तो इन्हीं का LCM भी लूंगा, और हाँ LCM भाई इन्हीं दोनों का लेना है, तो a माइनस बी, b का मेरे को LCM भी लेना है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो one number is a minus b, another is b. Can I write this equation for a minus b and b? HCF of a minus b, b into LCM of a minus b, b equal to this, the product of the two numbers that I have been given here. क्यों लिया मैंने इक्वेशन को, क्योंकि ये नंबर्स अंडर कंसिडरेशन है, नॉट ए बी।
अब मैंने वही बताया आपको कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, इफ HCF ऑफ जो भी आपका HCF ऑफ ए बी आएगा वही HCF ऑफ ए माइनस बी बी भी आएगा। तो HCF ऑफ हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द LCM, दिस इज व्हाट वी नीड। ओके, तो व्हाट विल बी द HCF ऑफ ए माइनस बी बी, इफ HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए माइनस बी बी, तो देन HCF ऑफ a माइनस बी विल बी HCF ऑफ a बी। HCF ऑफ a बी हमको दिया हुआ है h, क्या मैं इसकी जगह पे h रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। तो LCM ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी, और ये HCF जो भी मैंने निकाला इस रूल के थ्रू, दैट विल बी इक्वल टू h। डू वी हैव एनी सच ऑप्शन? a माइनस बी इंटू बी बाई h, दैट इज दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये नहीं पता होता तो वो नहीं कर पाते, ठीक है, ये ध्यान में रखना, पिछली क्लास में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 6 डिफरेंट कैंडीज ऑफ काउंट 32, 216, 136, 88, 184, 120 वर ऑर्डर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। तो 6 डिफरेंट टाइप की कैंडीज हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो अलग अलग टाइप की है, तो ये ब्लू 32 है, 32, रेड में भी 216 है, ऐसी अलग अलग कलर्स की कैंडीज है मान लो। They were ordered for a particular occasion. They need to be packed in such a way that each box has the same variety of candy. मतलब एक बॉक्स में एक ही टाइप की कैंडी होनी चाहिए, अलग टाइप की नहीं होनी चाहिए। And the number of candies in each box is also the same. हर बॉक्स के अंदर कैंडीज भी सेम होनी चाहिए। What is the minimum number of boxes required to pack? अब ये जब कैंडीज को आप अलग करोगे, अलग अलग बॉक्स में डालोगे, आप क्या चाहते हो? एक बॉक्स के अंदर एक ही टाइप की कैंडी आए और हर बॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ कैंडीज आए। तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले तो आप एक कॉमन फैक्टर निकालोगे, है ना, इनका, कि एक ऐसा फैक्टर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ताकि हम सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एंड उनका नंबर सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करने के लिए हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसलिए भी बिकॉज हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से फायदा क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना, और ताकि हर बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज आए और ऑफ सेम टाइप। तो अगर मैं HCF निकाल लूँ 32, 216, 136, 88, 184, 120 का, तो क्या आएगा बताओ? देखो 32 में क्या होता है? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 माने कि 32। क्या 32 सबको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। 32 के नीचे आओ 16, क्या 16 सबको डिवाइड कर रहा है? 16 भी नहीं कर रहा, है ना, 16 216 को डिवाइड नहीं कर रहा। एक और कम करो, 8, क्या 8 कर रहा है? 8 हाँ 32 को डिवाइड कर रहा है, 216 को भी डिवाइड कर लेगा, 136 को करेगा, यस, 88 को करेगा, 184 को, यस, इसको भी। तो यानी कि भाई 8 एक ऐसा नंबर ऑफ कैंडीज़ है जिसे अगर मैं हर बॉक्स में पैक कर दूं तो वो क्या करेगा? अलग अलग टाइप की कैंडीज़ को अलग अलग बॉक्स में फिट कर देगा। हर बॉक्स में नंबर ऑफ कैंडीज़ भी सेम होंगी और एक बॉक्स में एक ही टाइप की कैंडीज़ होंगी। जैसे कि 32 मेरे पास मान लो रेड कैंडीज़ हैं, तो 32 रेड कैंडीज़ को 8-8 के बैच में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होगा? 32/8, there'll be 32/8, sorry, right? 32/8 means there'll be 4 boxes, yes or no? Then 216/8 कितने बॉक्सेस आएंगे? 8 2 जा 16, 8 से 27 बॉक्सेस, है ना, सब में 8 कैंडीज होंगी और ये सेम टाइप की कैंडी होगी। मान लो ये ब्लू कैंडी है ना, फिर ये मान लो ये येलो कैंडी है, तो कितना होगा? 136 कैंडीज हैं, 8-8 के बॉक्स में पैक होंगी, तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, 8 7 56, 17 बॉक्सेस बनेंगे। फिर 88 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी 11 बॉक्सेस। मान लो ये आपकी ग्रीन टाइप की कैंडी है, ठीक है ना। देन 184 कैंडीज हैं आपके पास, सबको 8-8 के बॉक्स में पैक करोगे तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 8 2 जा 16, 8 3 जा 23 बॉक्सेस, ईच हैविंग 8-8 कैंडी ऑफ सेम टाइप, मतलब जो भी मान लो इसको वायलेट कैंडी है मान लो ये, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या, मान लो ये ऑरेंज कैंडी है 120, इनको भी 8-8 के बॉक्सेस में डिवाइड करोगे तो 120/8 देयर बी 15 बॉक्सेस फॉर्म्ड। तो आपने क्या कर दिया? 8 कैंडीज हर बॉक्स में आएंगी। फर्स्ट कैंडी जो रेड टाइप की उसके 4 डब्बे बनेंगे, सब में 8 कैंडी होंगी। देन ये आपका ब्लू कैंडी है मान लो, है ना, तो 216 कैंडीज हैं, 8-8 के बॉक्स में डिवाइड होंगी, 27 बॉक्सेस बनेंगे, हर बॉक्स के अंदर 8 कौन सी कैंडी होंगी? ब्लू। तो हमने क्या कर दिया? सेम नंबर ऑफ कैंडीज अलग अलग डब्बे में और हर डब्बे में अलग अलग टाइप की कैंडीज है ना, मतलब एक डब्बे में उसी टाइप की कैंडी है, कोई दूसरी टाइप की नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो कितने बॉक्स बने? 4 27 31 31 70 48 48 11 59 59 23 इज 80 समथिंग प्लस 82 प्लस 15 97, यस और नो? तो 97 विल बी द करेक्ट आंसर, यस और नो?
I hope this is clear. Good question. Okay. What about this? In a large school auditorium, the students are made to sit to watch the programs. If the teachers make a row of students of 16 each, there will be 12 students left. If they make rows of 24 each, there will be 20 students left. If they make rows of 25 each, there will be 21 students left. And if they make rows of 30, there will be 26 students left. What is the minimum number of students present in the school? बिल्कुल इसका रेप्लिका हमने भी थोड़ी देर पहले किया है. वो कह रहा है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अगर वो टीचर क्या कर रही है, 16 स्टूडेंट्स डाल रही है हर रो में, तो मान लो सपोज 16 एक्स रोज बन रही है, तो 12 स्टूडेंट्स बच जा रहे हैं. तो कैन आई राइट द इक्वेशन लाइक दिस कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स्ड है, उनको 16 की रोज में डिवाइड करोगे तो 12 बच जा रहे हैं. 12 इज द रिमाइंडर. सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आप 24 ईच, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, रिमाइंडर 20 स्टूडेंट्स बच रहे हैं, है ना. देन सेम 25 ईच, है ना, तो 25z, तो कितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, 21 लेफ्ट. एंड 30 ईच, तो 26 लेफ्ट. तो 30 सपोज मैं डी मान लेता हूँ, है ना, तो 26 स्टूडेंट्स बच रहे हैं. ये क्लासिक केस है बिल्कुल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो डिवाइजर है, जो रिमाइंडर, उसमें 4 का डिफरेंस है. यस और नो. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली मैंने बताया था आपको कि जो नंबर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म k टाइम्स, है ना, LCM ऑफ ऑल द डिवाइजर 16, 24, 25, 30 माइनस व्हाट, कितना डिफरेंस है, 16 और 12 का डिफरेंस 4, 24, 24, 25, 21, 4, 30, 26, 4 माइनस 4. करो, कितना आ जाएगा एलसीएम 16, 24, 25, 30 का. 25 है तो भाई 2 25 तो रहने ही पड़ेंगे. 25 इंटू 6 की तो 150, 150 और 4 ये भी चाहिए, तो कितना आ जाएगा 16. एलसीएम वुड बी 2400. यस और नो. सो 2400 k माइनस 4. हमें बिकॉज नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो हम k की वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल लेंगे, दैट इज 1. सो 2400 माइनस 4, दैट इज 2396 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ वील गो टू दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज HCF ऑफ 2 की पावर 100 माइनस 1 एंड 2 की पावर 120 माइनस 1. तो दीज आर स्पेशल केसेस व्हेन आपको HCF निकालना पड़ता है इस पावर फॉर्मेट का. तो a की पावर m माइनस 1 एंड a की पावर n माइनस 1 का अगर आपको HCF निकालना है, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज इक्वल टू a की पावर HCF ऑफ m कॉमा n माइनस 1. तो अब आप कुछ नहीं, a क्या है आपका बेस, नीचे 2 है. सो कई बार ऐसा हो सकता है देखो कि 2 की पावर 100 यहाँ लिखा हो, यहाँ 4 की पावर कुछ लिखा हो, 8 की पावर, तो एक्सप्रेस कर लेना, बेस सेम बना लेना. ओके. सो 2 की पावर HCF ऑफ 100 एंड 120 कितना आएगा? इट विल बी 20. HCF ऑफ 100 एंड 120 दैट इज 20 माइनस 1. सो दिस विल बी द HCF. अब ये आया कैसे भाई, इसको ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो. ठीक है, इसको आप आगे जाके ब्रेक कर लो. जैसे इसको आप ब्रेक कर लो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है ना, 2 की पावर 50 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो वैसे करके आगे जब आप फाइनली जा करके हाईएस्ट कॉमन देखोगे तो आपका वो इसी फॉर्मेट में आएगा. इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ब्रेक करके भी आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में देख सकते हो. दैट्स अ लॉन्ग मेथड. ओके. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 65, 81 एंड 145 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है. ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 65, 81 एंड 145 लीविंग द सेम रिमाइंडर ईच केस. यानी कि एक नंबर निकालना है हमको, कौन सा, जो इनको डिवाइड कर रहा है. डिवाइड कर रहा है मतलब डिवाइजर. ओके. तो 65 को एक नंबर सपोज n डिवाइड कर रहा है, a कोशेंट प्लस रिमाइंडर r ही आ रहा है. देन 81 को वही नंबर डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन बदल जाएगा, रिमाइंडर सेम आ रहा है. देन 145 को वही नंबर डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन बदल जाएगा c, रिमाइंडर r. 2 तरीके इसको करने के कि भाई करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 2 के पेयर में लो, उनका डिफरेंस निकालो. जैसे अगर मैं सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 16 विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स b माइनस a, r कैंसिल हो जाएगा. देन थर्ड से सेकंड को माइनस करूँगा तो 145 माइनस 81 विल बी 64, 64 विल बी n टाइम्स c माइनस b. यस और नो. एंड फाइनली थर्ड से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 80. तो 80 विल बी इक्वल टू n टाइम्स c माइनस a. यस और नो. 3 इक्वेशंस बन गई. व्हाट डू वी सी, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट सच नंबर. ग्रेटेस्ट सच नंबर यानी कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है. n की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो n यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है. यानी कि n को ग्रेटेस्ट करना है तो n क्या होना चाहिए, एक तरीके से आपका HCF इन तीनों नंबर्स का. बिकॉज n निकला किन में से, 16, 64, 80 में से. इनका HCF निकाल लोगे अगर आप, ठीक है, 16, 64, 80 का, तो कितना आएगा, दैट विल बी
16 only, right? HCF. That's my answer. इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर लेना, इसका डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस, 3 डिफरेंस आएंगे, उनका HCF ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. This question, 4 logs of wood of length 21/4, 28/15, 7/2 meters and 49/10 meters are cut into small pieces. ठीक है, मतलब कि इन लेंथ्स को और छोटे पीसेस में कट कर दिया है. ऑल ऑफ विच हैव इक्वल लेंथ. ठीक है, इक्वल लेंथ करना है तो भाई कॉमन लेंथ है उनकी, कॉमन लेंथ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा पक्का इनका. ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल. एज लेंथी एज पॉसिबल यानी कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा काटो, बट कीपिंग द लेंथ सेम ऑफ ऑल द पीसेस. तो यानी कि HCF निकालना पड़ेगा उनके लेंथ का, है ना. Each cut piece is given to a set of 2 carpenters to work on something. How many carpenters are there in all to work? Okay. सबसे पहले पता लग गया भाई कि ये मेरे वुड्स जो लॉग्स हैं वो इतनी लेंथ के हैं और उनको एज लेंथी एज पॉसिबल काटना है, और सबकी जो लॉग्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इन सबका HCF निकाल लो. क्या लगेगा, ये सब क्या है, 21/4 सब फ्रैक्शंस हैं, है ना. HCF ऑफ फ्रैक्शंस पिछली क्लास में बताया था, दैट इज HCF of all numerators upon LCM of denominators. This is also your question, okay? Same thing, okay? 3 pieces of string with length this are cut into pieces that are all equal in length, the greatest length. इसमें सीधा HCF निकालना है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, That's it the session. HCF LCM यहाँ पे खत्म होता है. मैंने सारी वैरायटी कवर कर दी है. ठीक है, I hope you enjoyed the entire playlist. As I said, please comment your feedback. If you understood or not, then share this, subscribe to the channel, okay? And if you want playlist on any other topic, do let me know. इसके आगे आप प्रैक्टिस सेशंस लगे हुए इसी प्लेलिस्ट में उनको कर सकते हो, उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं. कीप डूइंग योर मॉक्स एंड PYQs अपार्ट फ्रॉम दिस एंड यू आर fully prepared for numbers. Thank you so much. I'll see you again.